मैं जब इसको भाग के ख़त्म करता था तो मेरे ये मांस के टुकड़े निकले होते थे, तो ये चोटें लगती थी तो इतनी होती थी कि ये लाल सॉक्स निकाला करता था हर बार में। You don't choose life, but life chooses you. आपको लगता है ये जो आपकी जर्नी है, this was something that you had to go through? कारगिल चल रहा था अपने इलाके में, कारगिल द्रास मशको, लेकिन लड़ाई नीचे भी हो रही थी। 15 जुलाई 99 जिस दिन मुझे चोट लगी, और चोट लगने के बाद डेड भी डिक्लेयर किया गया। इट्स लाइक ये सिचुएशन सामने से आती है, बट हमारी नॉर्मल थॉट होगी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अब तो पता ही नहीं क्या होगा, अब तो लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन उसके बाद की जो एनर्जी है वो हमारी चॉइस है। जो अंदर से जो आपका जो ताकत है आपको, आपके पास, वो हम सब, every human being has that potential to have that strength. आइंदा से कभी कोई बोलता है ना आपको आप ये नहीं कर सकते, उसको कुछ मत बोलो, आप मन ही मन बोलो आप देख मैं करके दिखाता हूँ। शरीर का मालिक बनने से पहले अपने मन का मालिक बने हैं। मन को कभी बहाना नहीं देने दिया, मन को टाइम बाउंड रखा, मन को डिसिप्लिन में बाउंड रखा। तो पहली बार जब मैं भागा था ना, कांस्टेंट बैटल थी मेरी खुद के साथ कि रुक जा, शॉर्टकट ले ले, कट मार जा, या फिर लिफ्ट ले ले, ये तो तू कर देगा, मगर इज दैट व्हाट अ सोल्जर इज? तिरंगे की शान बनी रहेगी। Welcome back to another edition of our Think Right podcast. आज when I met our guest today, और मैं बाहर बैठा था, and the first thing that came to my mind was Rabindranath Tagore's words, Tobe ekla chalo re. You know, if no one walks with you, walk alone. And this is the kind of a guest we have today, a Kargil war veteran, India's first Blade Runner, the first Asian with a disability to skydive solo and fly an aircraft alone. Major DP Singh stands as a living symbol of resilience and reinvention. Welcome, DP जी. Thank you, जय हिंद. आपका बहुत बहुत welcome आज के podcast में. You know, after you survived a near-death experience during the Kargil war, he now lives with 100% disability, but that's just one part of his remarkable story. Off the battlefield, life tested him, I think, more fiercely. A painful marriage that ended in a heartbreak, responsibility of raising his 2-year child alone, and the toughest battle of all, making peace with the soldier he once was, and the new reality of living as an amputee. But I think, DPG, through it all, you have defied all odds. Aapne, you know, you're not only surviving, you're soaring. Aapki journey talks about physical courage. It talks about the strength to rebuild a life when every part of it has been shaken, and we'll get into some of those conversations. But aapki jo positivity hai, I think that has stood out. Aapko, I think everyone calls you Positive Singh. So that is a very, very important, you know, trait that we always talk about. For koi bhi challenge aaye life mein, I think staying positive is the one big factor, as our radiant light of wisdom, Sister Shivani, will always mention. Welcome, Sister Shivani, to this podcast, because here we have somebody who radiates positivity. वो थोड़े minutes that हमने बाहर बात की before coming into the show, one could understand the way you have taken up every challenge as a part of your life. So again, very warm welcome to both of you. So DP जी, I think पहले तो आपकी story थोड़ी सुनाइए from 15 जुलाई 1999 से 2009 तक, you know, वो साल कैसे थे, and you know, खुद को कैसे rebuild किया? 15 जुलाई 99 जो था वो मेरा लेटेस्ट बर्थडे है। अच्छा। लेटेस्ट वाई ऐसे क्योंकि शायद मैं वो गिने चुने लकी इंसानों में से हूँ जो 3 बर्थडे सेलिब्रेट करने की चॉइस रखता है। पहला तो है मेरा बायोलॉजिकल, दूसरा मेरे पिताजी ने बोला कि भैया बहुत नाक में दम कर रखा है तो चलो जल्दी स्कूल, और मेरे को तकरीबन कुछ महीने जल्दी दिखा के रिकॉर्ड में स्कूल में भेज दिया। और तीसरा जो मैं बड़ा अच्छा चेरिश करता हूँ, जिसको मैं डेथ और रीबर्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट भी करता हूँ, वो है 15 जुलाई 99 जिस दिन मुझे चोट लगी, और चोट लगने के बाद
डेड भी डिक्लेयर किया गया, क्योंकि मेरे जो 7 डोगरा के जो सिपाही थे उन्होंने अपनी जान पे खेल के जब मुझे उस सेक्टर से, अखनूर सेक्टर में जहाँ पर मैं मौजूद था, देखो कारगिल चल रहा था अपने इलाके में, कारगिल, द्रास, मशको, लेकिन लड़ाई नीचे भी हो रही थी जो छुपी हुई थी, क्योंकि उधर टीवी मीडिया नहीं था ज़्यादा। मेरी जो पोस्ट थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल में एक नदी बहती है मनवर तवी, उसके पाकिस्तान की साइड पे थी, PP6 जिसका नाम है, वहाँ पे चोट लगी थी। तो मेरे सिपाहियों ने 7 डोगरा के मुझे अपनी जान पे खेल के मुझे वहाँ से इवैक्यूएट किया था, क्योंकि दुश्मन की नज़र में थे और वो आराम से किसी को भी मार सकता था। खैर उनकी ब्रेवरी और जो मेरे मेडिकल ऑफिसर थे जिन्होंने मेरे को हमेशा वो जर्नी जो वहाँ से लेके हॉस्पिटल तक की थी नियरेस्ट 2.5 घंटे की, उसमें मेरे को जगा के रखने की कोशिश करी, उलझुल सवाल पूछ के, जिसमें मैं चिढ़ भी रहा था कि क्या सवाल पूछ रहे हैं, मगर मैं बेहोश हो गया और रास्ते में कार्डियक अरेस्ट हुआ और लहू बहुत बहा, क्योंकि 73 बम के टुकड़े तो अभी भी अंदर हैं और उससे ज़्यादा बहुत सारे काट के जा चुके थे। तो जो लहू बहा और जो दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद शायद जो डॉक्टर साहिबान थे उनको लगा कि भैया ये मृत, मतलब, मगर किस्मत ने वहाँ से मुझे दूसरी ज़िंदगी देनी थी, जिसके बाद आपके साथ आके बैठना था इन बातों को करने के लिए कि क्या किया है। तो पिछले 26 साल में जो कुछ किया उसके पीछे कारण मेरे सिपाही हैं, कर्नल राजिंदर सिंह हैं, जिन्होंने मुझे दोबारा से रिवाइव किया, जिनको मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि 19 साल में मैंने उनको ढूंढा कि कहाँ हैं वो, कैलिफोर्निया में बैठे हैं। तो जब मैं 23 में जब हवाई जहाज उड़ाने के लिए अमेरिका गया था, तो वहाँ उनसे मिल के उनको शुक्रिया करके, उनका ग्रैटिट्यूड करके वापस आया था कि आपने मुझे बचाया। लेकिन वो जो 10 साल थे उसके बाद के, वो ऐसे साल थे जो छुपे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं सालों में बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को होना था जो फाउंडेशन थे आगे आने वाले काम करने के लिए। एक डिसेबल सोल्जर जो कि एक्चुअल में कमांडो ट्रेन था, वो कंफ्यूज था कि मैं सच्चाई क्या है, ये डिसेबिलिटी या जो दिमाग में मेरी पिक्चर बनी हुई है वो सच्चाई है। जो मैं कभी सीढ़ियों पे भी ना 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी से कम उतरता था कभी और ना चढ़ता था, वो अब 1 सीढ़ी चलने में मुश्किल हो रही है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे यही होती है, और इसी का एग्जांपल देता हूँ कि 1 सीढ़ी में कैसे उतरूँ। तो मैं भाग के चढ़ता था, भाग के उतरता था, पहाड़ों में चढ़ जाना, कुछ भी कर लेना। और अभी मेरे को घर से उठ के क्रच, वॉशरूम तक जाने के लिए क्रच के सहारे की ज़रूरत है। अभी टांग पहननी शुरू करी है, जिसका अभी जो टांग अब पहनता हूँ वो तो काफ़ी हाईटेक है। उससे पहले लोहे, लकड़ी, चमड़ी की टांग पहनते थे, उससे चलना बड़ा मुश्किल होता था, दर्द होते थे। उन सबको कैसे झेलूँ? तो एक उम्मीद होती थी कि शायद किसी से प्यार मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि बचपन भी सारा ऐसे ही अकेले निकला। उस उम्मीद के सहारे पे आगे बढ़ते रहे तो शादी हो गई, लगा कि पार्टनर से वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अब पार्टनर की भी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हमारी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस। अनफॉर्चुनेटली मैं एक वॉर इंजर्ड और वो भी बुरी तरीके से, तो वो बीच में मिसमैच हुआ। वो टसल जो थी, जब पेन हो रही होती है और जब आप कुछ कर नहीं पाते हो, वो एंगर को, इरिटेशन को और ज़्यादा जनरेट करती है, और उसको समझना किसी दूसरे के लिए मुश्किल होता है। मुझे खुद नहीं पता था कि बाद में पता चला कि शायद इसको PTSD वगैरह बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी रातें ख़राब हुआ करती थी। कुछ ऐसी स्मेल्स होती थी जिनको देख के लगता था कि उल्टी हो जाएगी, ये क्या हो रहा है, बारूद की या पाउडर की, ऐसी बहुत सारी स्मेल्स होती थी। तो ये कॉन्कॉक्शन था जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था कि हो क्या रहा है। फिर आइसोलेशन किसी के ना सहारे के कारण, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसने मुझे बचा के रखा, और वो था मेरा भरोसा जो मुझे बचपन में मिला था परवरदिगार के ऊपर रखने का। सीखा था शायद बचपन में कुछ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब ये अच्छा क्या हो रहा है इसके बारे में बाद में पता चलेगा, ये मेरे को समझ में आ चुका था पहले, क्योंकि बचपन में भी मैं 1 साल जब फेल हुआ था, तो मैंने फेल के बाद जब क्लास रिपीट कर रहा था, तो एक बच्ची की जान मेरे हाथों से बची थी। और वो बच्ची की जान तभी बची क्योंकि अगर मैं फेल ना होता तो स्कूल वापस ना आया होता और मैं वहाँ ना होता। तो मुझे समझ में आ गई थी ये बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी वो टाइम कम लगता है, कभी ज़्यादा लगता है। तो ये 10 साल के दौरान ये इन सब बातों से मैं जूझ रहा था और अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब ठीक हो रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि सब ठीक हो रहा है समझ पाना, क्योंकि अभी इतना ग्रो नहीं करे थे। 24-25 साल की उम्र थी, धीरे धीरे चलता रहा। नौकरी भी करनी है, उसमें अपने आप को करके भी दिखाना है। बेस्ट पार्ट ये था कि मैं फ़ौज से बिलोंग करता हूँ, और फ़ौज में कभी एबिलिटी डिसेबिलिटी का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे सब एक बराबर थे। उसका जो सपोर्ट था वही सपोर्ट था, उसके अलावा बाकी कोई सपोर्ट नहीं मिला। और जैसे आपने बताया, एकला चलो
चलते रहे, चलते चलते कहीं तो पहुँचेंगे ही। But आपको लगता है कि आप जो बोल रहे थे कि you don't choose life but life chooses you, आपको लगता है ये जो आपकी जर्नी है, this was something that you had to go through? ये शायद अब आके कुछ सालों से समझ में आने लगा है कि हर एक इंसान की जो इस धरती पे है वो किसी पर्पस के कारण आया है, और उसका सबसे बड़ा पर्पस मेरे हिसाब से सेटिंग ऑफ कर्मा का जो डेट और क्रेडिट है उसको आप बैलेंस आउट करके, सो दैट अल्टीमेटली यू आर प्योरीफाइंग इस लेवल पे जाके अपने आप को कि आप एक हो गए हो। वो जर्नी में आपने किसके साथ क्या कर्म को सेट ऑफ करना है आपको नहीं समझ में आता। तो जब आप उसको जी रहे होते हो तब लगता है यार बड़ा मुश्किल है मामला, ये तो गड़बड़ होगी। ना माँ ने मेरे को नज़दीक रखा, बचपन में दादा दादी के पास भेज, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ उसको पीछे से जाके तो मुझे लगता है कि यार ये सब ज़रूरी था। ज़रूरी था कि मेरे पिताजी के पास अपनी जॉब नहीं थी और मैं वहाँ पैदा हुआ। वो जब कहीं पे थे तो उन्होंने मेरे को फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण दादा दादी के पास रखा। वो ज़रूरी था जब मैं सिर्फ दूसरी क्लास में था। ज़रूरी था कि दादा दादी बहुत सख्त हों ताकि, और नाना नानी से प्यार ज़्यादा मिले। वैसे अक्सर में सबको भी मिलता है क्योंकि छुट्टियों में ही जाते हैं वहाँ पे, और मैं वो खिंचाव से घर से भाग जाऊँ कि भैया यहाँ पे नहीं रहना, ये बेकार जगह है। क्योंकि अगर मैं वो घर से ना भागता 8वीं कक्षा में तो मुझे शायद उस दिन ये जो महसूस हुआ कि अपनी सच्चाइयों से आप नहीं भाग सकते। वो मेरी ज़िंदगी का पहला यू टर्न था जब किसी ने मुझे वापस ला के घर पे बाहर छोड़ा। आते वक्त मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार सच्चाइयों से भाग नहीं सकते आप। ये ज़रूरी था समझना उस समय, और ये भी ज़रूरी था कि मैं फिर दादा दादी मुझे गुरुद्वारे के साथ जोड़ें ताकि मेरे को अपनी हिस्ट्री, गुरुओं के सैक्रिफाइस से पता चले कैसे उन्होंने अपने आप को निछावर किया है, कैसे मेरा कनेक्ट आर्मी के साथ हो। क्योंकि वही एक मैच देख के मैंने आर्मी के ज्वाइन करने की सोची। जो मेरी सिख हिस्ट्री है वही आर्मी की हिस्ट्री है। आप अननोन लोगों के अपने लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो। ज़रूरी था कि मैं फ़ौज में आऊँ क्योंकि वहीं पे चोट लगनी थी। ज़रूरी था कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो और मैं उस इलाके में हूँ जो गुमनाम है। वो सिपाही का बम फेंकना ज़रूरी था ताकि मेरी टांग कटे। ज़रूरी था कि मैं डिसेबल हूँ ताकि मैं बाहर आने के बाद हिस्ट्री को बनाने का जो मेरे को मेरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है भगवान ने, मतलब मैंने नहीं कुछ किया, लेकिन इस रास्ते पे चला के जो कुछ होना था, पहला एम्पुटी ऐसा बनना था, पहला ब्लेड रनर बनना था, स्काई डाइवर और हवाई जहाज। मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं हवाई जहाज भी उड़ाऊंगा। हाँ, स्काई डाइविंग तक मेरे को थोड़ा कीड़ा था कि उल्टे सीधे कुछ काम करने हैं, लेकिन हवाई जहाज के बारे में कभी नहीं सोचा। तो ये सब ज़रूरी था ना, अब पता चलता है। ये पहला यू टर्न ना होता तो दूसरा यू टर्न जो ज़िंदगी का था, जिसमें चोट लगने के बाद मुझे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना था कि सच्चाइयों से नहीं भाग सकते। चोट लगी है, डिसेबिलिटी है तो ये सच्चाई है, एक्सेप्ट कर लो। जो चीज़ आप नहीं बदल सकते उसको गले लगा लो, और गले लगाने के बाद उसमें क्या बेहतर कर सकते हो। ये बात बचपन में तब समझ में आ गई थी, लेकिन अब रियलिटी में इसको फेस करने के लिए वो बचपन का यू टर्न जरूरी था। तो ये इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट है। अकेला रहना जरूरी था, क्योंकि अकेले रहने में आपका जब सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते हो। आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो तभी निकलती है जब आप वो एकला चलो वाले मोड में होते हो। तो ये ज़रूरी था सब कुछ। तो मैं शायद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप। जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी भगवान ने, उसको चलने के रास्ते पे कोशिश कर रहा हूँ। वो अपने आप ही हिम्मत दे रहा है। तो पर्पस ऑफ लाइफ अचीव होता जा रहा है, चेंजेस आते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मेरी टांग कटी थी तो डॉक्टर साहिबान ने, मेरी टांग पहले दिन नहीं कटी थी, गैंग्रीन हुआ था। तो अखनूर से 5वें दिन मुझे इवैक्यूएट करके फर्दर भेजा गया था उधमपुर में। वहाँ पे डॉक्टर साहिबान ने असेस करके मेरे को बोला था कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी। तो उस वक्त 2 विचार मेरे दिमाग में आए थे। पहला था, जिसका क्रेडिट मैं कभी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल और स्पिरिचुअल विचार था कि अब देखते हैं कैसे डिसेबल लोग ज़िंदगी जीते हैं। शायद किसी दिन मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ जिससे ना सिर्फ मैं इंस्पायर हूँ, बाकी दुनिया भी हो। ये इतना पावरफुल विचार एक 24 साल का लड़का नहीं ले सकता। लेकिन दूसरा जो था वो मेरा अपना था कि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी और स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और अगर ये दोनों चीज़ों को आपको रखना है तो आपको अपना सबसे बड़ा क्रिटिक बनना ज़रूरी है। और वो बचपन में आदत पड़ चुकी थी कि इंट्रोस्पेक्शन करो कि कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो।
क्या अपने आप को बेहतर कर सकते हो, ये बचपन में आदत पड़ चुकी थी। तो ये कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है कि इससे बढ़िया और क्या मांग सकते हो आप। नहीं, ये आपकी जो लाइफ की जो स्टोरी है इज़, जो भी मोमेंट है उसमें आप पॉजिटिव करके इसको कैसे कर सकते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं अभी इस सेशन में, इस पॉडकास्ट में, व्हाट कैन वी डू बेस्ट कि जिससे लोगों का लाइफ बदल सके, जिन लोगों की लाइफ बदल सके। आप जो बोल रहे हैं जो डिसेबल है, उस विचार से ही हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। आई थिंक एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ हैज बीन वन वेयर यू हैव लुक्ड एट व्हाट इज पॉजिटिव एंड आई थिंक। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जितना पॉजिटिव मैं अभी आपको दिख रहा हूँ और जो मैं बोल पा रहा हूँ, जब मैं जी रहा था तो उतना पॉजिटिव मैं जी नहीं पाया था हर क्षण को। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं हर क्षण में बहुत पॉजिटिव हूँ। भैया मैं इंसान हूँ, कुदरत ने पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन सबको दिए हैं। अगर मेरे बस में होता तो मैं परचून की दुकान से सिर्फ पॉजिटिव ही खरीद के लाता, नेगेटिव नहीं मिलते। लेकिन मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शायद ये कोशिश करी है कि अगर नेगेटिव जोन में जा रहे हो तो और कोई आपको वहाँ पे सहारा देने वाला नहीं है तो कितनी देर रोते रहोगे यार। आ जाओ वापिस, अपना लो। अगर बदल सकते हो बदल दो, नहीं बदल सकते तो अपना लो, क्योंकि जब आप अपना लेते हो तब यू आर एट पीस। और जब आप पीस में होते हो देन यू कैन डू वंडर्स। Now, I think जो आप बोल रहे हो ना, that if you can be that in every moment, फिर तो we are all enlightened. हर क्षण में if we can be connected and do everything with the right energy, positivity, and that's why I'm going to turn to Sister Shivani, जो जिनकी हर क्षण वैसी रहती है, you know, and I don't know, you know, आपको सुनने के बाद, is it a soldier, when you become a soldier, when you choose to become a soldier, the mental health and, you know, how जो सोल्जर होते हैं, what do we learn from them about strength of mind? I mean, when you join the forces, I think you are prepared for the worst, right? In some, I mean, very hard when it hits you. But is there something for us to learn? But resilience building भी तो बहुत होती है ना, physical resilience, but mental resilience, emotional resilience, वो अपना building तो हो ही रही है। But जब वो situation आती है लाइफ में, उसके बाद उस situation को देखने का नजरिया कि रेजिलियंस बिल्ड हो गई, लेकिन अब इस रेजिलियंस को यूज़ करके मिरेकल में कैसे कन्वर्ट करना है। रेजिलियंस तो है, लेकिन अब उसको मिरेकल में कैसे कन्वर्ट करना है, बाय गिविंग इट अ हायर पर्पस। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हमें इसमें से लेनी है, जो हो रहा है वो मेरे लिए सही हो रहा है। एंड वी लिटरली लिव बाय दिस लाइन। मतलब कुछ भी हो जाए, फर्स्ट थॉट ये मेरे लिए कल्याणकारी है, तो इसमें मेरा अच्छा समाया हुआ है। अब पीपल फिर ऐसे ही कैसे बोल सकते हैं, जब कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो हमें कैसे बोलना चाहिए कि ये अच्छा हुआ है, क्योंकि बाय डूइंग दैट सबसे पहले आप किसका ध्यान रख रहे हो, आप अपने मन का ध्यान रख रहे हो। आप उस सिचुएशन को ये एनर्जी दे रहे हो। इट्स लाइक ये सिचुएशन सामने से आती है, बट हमारी नॉर्मल थॉट होगी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अब तो पता ही नहीं क्या होगा, अब तो लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। तो प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन उसके बाद की जो एनर्जी है वो हमारी चॉइस है। So the minute I will start giving that situation this vibration, ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं रह सकती, तो वो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन जैसे हम आती है एंड फर्स्ट थॉट में कहते हैं ये मेरे लिए कल्याणकारी है, इसमें मेरे लिए अच्छा ही समाया हुआ है, सबसे पहली चीज़ होती है सिचुएशन हम पे ओवर पावर नहीं करती, हम सिचुएशन के ऊपर जाते हैं ना। दैट्स द फर्स्ट विक्ट्री, इट्स द फर्स्ट विक्ट्री कि आई हैव टेकन माई सेल्फ हायर। तो मन सिचुएशन के ऊपर जाता है। अब मन की पावर आ गई, फिर रेजिलियंस तो ऑलरेडी थी, तो एवरीबडी नीड्स टू डू दिस। वी मे नॉट बी इन द फोर्सेस, हमारी इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, लेकिन ये एक अफर्मेशन आज हर एक ले ले कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए है, जो मेरे घर में हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए है। एंड जस्ट होल्ड ऑन टू दैट लाइन। कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बोलते जाना ये अच्छे के लिए हो रहा है, एंड यू विल सी थिंग्स चेंजिंग। दूसरी लाइन जो हमने सीखनी है, परमात्मा में निश्चय, परमात्मा में विश्वास कि हाँ मुश्किल आई है। इट्स लाइक अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट, कि मुश्किल आई है बट द पेरेंटल पावर इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी। तो वो भगवान में विश्वास, वो निश्चय, और फिर उसकी शक्ति को अपने जीवन में यूज़ करना। तीसरी चीज़ जो भाई साहब ने कही, जो चेंज कर सकते हो उसको चेंज करो, जो चेंज नहीं कर सकते उसको स्वीकार करो, मतलब एक्सेप्टेंस।
एंड जैसे ही एक्सेप्टेंस आएगी तो पीस आएगी, और जब पीस आएगी तो आप मैजिक क्रिएट कर लोगे. सो इफ़ वी जस्ट पिक अप, एवरी वन ऑफ अस, इफ़ वी जस्ट पिक अप फ्रॉम दिस वन थिंग कि जब भी कुछ भी हो जाए पहले अपने माइंड को पीसफुल बना लो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, सिचुएशन को ब्लेसिंग दो कि ये मेरे अच्छे के लिए आया है, और फिर उस शांत मन से उस सिचुएशन में भी मिरेकल क्रिएट करो. वी कैन ऑल डू दैट. So that's our very deep learning now from here. I think these 3 clear principles. Very अगर clear. मैं अपनी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है आई मे नॉट बी यूजिंग द सेम वर्ड, बट मैं बच्चों से जब मिलता हूँ तो उनको मैं ये बताता हूँ, बच्चों से क्या बड़ों से भी ये बात होती है कि फर्स्टली जो हमारा एक ये स्टेटमेंट है ना कि फाइटिंग अगेंस्ट ऑड, आई थिंक इट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट. आपको अगेंस्ट जाने की लोड़ नहीं है, आपको फाइट करने की लोड़ नहीं है. आपके पास चैलेंज आ रहा है क्योंकि आप लकी हो. कारण क्यों है मैं बताता हूँ आपके पास. आपके पास चैलेंज आ रहा है, आप लकी इसलिए हो क्योंकि आप अब अगर फाइट करने की जगह अंदर जाके राइज अबव द ऑड के बारे में सोचो कि भैया ये आ रहा है. देखो क्या होता है जब फाइट करने जाने तो क्या होता है, फाइट एक तो आप बैकफुट ले रहे हो और उसको आप पावर दे रहे हो. मैं बोलता हूँ कि भैया तू जो मर्जी हो ऐसी की तैसी, मैं तो सिर्फ अपने से ख्याल रखूँगा. वेर एम आई वीक कि ये मेरे को डरा रहा है. अब वीकनेस सब में है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इसके ऊपर मेरे को काम करना है. चाहे वो बच्चा हो जो मैथ्स में वीक है, चाहे वो बड़ा हो जिसको डर लग रहा है किसी चीज़ से. इसके ऊपर मेरा जब काम करूँगा तो इम्प्रूवमेंट किसकी हो रही है, मेरी. जब मेरी वो वीकनेस को मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दूंगा तो जो मेरे सामने चैलेंज है वो अपने आप छोटा पड़ गया, वो हार गया. तो यू आर अ विनर इन द प्रोसेस बिकॉज आप इम्प्रूव भी हुए और आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी. तो फिर आपके लिए और जो है वो आपके फायदे के लिए है कि नुकसान के लिए है. Correct. तो जब आप लकी हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, ऑड आ रहा है, तो भैया लकी है. तो मैं ये बोलता हूँ बच्चों की, आइंदा से कभी कोई बोलता है ना आपको आप ये नहीं कर सकते, तो उसको कुछ मत बोलो, आप मनी मन बोलो, आप देख मैं करके दिखाता हूँ. मनी मन बोलना है और करो, अंदर जाके अपनी शक्ति बढ़ा के और बता दो. एक्शन अपने आप समझ जाएगा. वो बोले यार तू तो बड़ा काम का आदमी, तो ये तो आप लकी हो यार. तो मुझसे बड़ा लकी कोई नहीं है इस दुनिया में. इस समय इतने चैलेंजेस अगर आए हैं तो भगवान ने कुछ सोच समझ के दिए होंगे ना. ये किसी काम का, आप किसी एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्यों देते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये कर सकता है, चाहे एम्प्लॉय कट मारने के चक्कर में हो, लेकिन आपको पता है उसकी स्ट्रेंथ, तो उसको पता है मेरी स्ट्रेंथ, वो लगा हुआ है अभी भी निकालने के लिए. मुझे पता नहीं अभी भी पता है कि नहीं. अभी और आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, देखेंगे आगे चल के क्या होना है. और आपको कभी सपोर्ट सिस्टम ये वो की जरूरत कभी नहीं पड़ती, बिकॉज जब भी होती है यू गो विद इन योर सेल्फ एंड डू दैट. सो व्हाट कैन वी डू लाइक फॉर पर्सन लाइक यू, आप जैसे, हम सपोर्ट सिस्टम में सोसाइटी की तरह क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू टू मेक दिस सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्गर? देखिए पहली बात तो ये है कि ये मैं नहीं मानूंगा कि मुझे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत की इच्छा नहीं होती है. मिलता नहीं है वो बात अलग है, इच्छा सबकी होती है. जब मैंने भागना शुरू किया तो ये टांग जो है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि भागना है. और मैं ये भी बताऊँ आपको कि जब टांग थी, बॉडी पूरी थी, तो मुझे लंबी रेस का कोई लगाव नहीं था. क्रॉस कंट्री टेस्ट होता था एकेडमी में जब हमारी ट्रेनिंग होती है 10-14 किलोमीटर का, तो मैं गिरते में यार क्या टेस्ट हो गया फालतू का, ख़त्म करो इसको. लेकिन जब टांग कटी, जब चोटें लगी, जब डिसेबिलिटी आई, तो सामने एक क्वेश्चन मार्क था एबिलिटी के ऊपर. ये आप कर सकते हो, जो सोसाइटी ने दिया, जो उन चैलेंजेस ने दिया. तो फिर मैं जैसे आपको बताया, मैंने उनके साथ लड़ाई नहीं करी. मैं बोला चल मैं देखता हूँ कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. तो मैंने वो सबसे मुश्किल काम उठाया जो मुझे लगता था या सोसाइटी को लगता है कि जिसकी टांग नहीं है वो भाग नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, सहारे की ज़रूरत है, तो लंबी दौड़ कैसे लगा लेगा. और जो लगाने में इच्छा ही नहीं रखता उसके लिए तो बहुत मुश्किल है वो. तो सपोर्ट सिस्टम को ढूंढने के लिए मैंने इधर उधर गया कि यार इसके साथ कैसे भागते हैं. तब व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, किसी से कुछ पता नहीं चला. तो मैंने बोला यार कुछ नहीं पता तो आप चालू करो. आपको इतना पता है कि हमने 21 किलोमीटर की दौड़ हाफ मैराथन कंप्लीट करनी है और टाइम उसमें दे रखा था 3.5 घंटे का. तो चल के कर लेते हैं, भागने के लिए थोड़ी लिखा हुआ है किसी ने. अब चलते 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 आपको लगा कि एक दिन आप थोड़ा उछल के भागने लग गए, तेज चलने की कोशिश करें तो उछलने लग गए. तो लगा यार ये बढ़िया तरीका है. तो कायनात ने आंसर दे दिया. आप कोशिश कर रहे हो ना, आंसर कायनात से मिल जाएगा. तो सपोर्ट सिस्टम जब नहीं मिला तो आप सपोर्ट सिस्टम खुद तैयार करो दूसरों के लिए. तब मैंने वो, क्योंकि मैं पहला ऐसा एम्पूटी था देश में,
तो फिर मैंने वो एनजीओ शुरू किया, द चैलेंजिंग वन, जिसको फिजिकली चैलेंज बोलते हैं। मैं बोलता हूँ ये चैलेंजर है, आपको भी चैलेंज कर सकते हैं, चलो बाहर निकल के देखते हैं कौन बढ़िया भागता है। तो जो वो चैलेंज कर सकते हैं, तो वो ऐसे गिने चुने व्यक्ति हैं, उनको मैं ये बताता हूँ, अभी 3500 कनेक्टेड है मेरे साथ एम्पूटी, उनको मैं हमेशा यही बताता हूँ कि काका आप लोग जो है ना वो सताए हुए नहीं हो, आपके कर्म खराब नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप वो गिने चुने हो जिसको भगवान समझता है कि यार ये टांग होने ना होने, हाथ होने ना होने के बावजूद ऐसे कीर्तिमान कर सकता है जो हट्टे कट्टे नहीं कर सकते। तो बेहतर कौन है, डिसेबल कौन है, वो क्या आप। उसके बाद अपने आप को अपनाओ, तो ये निक्कर विक्कर खोल हटाओ, उसकी कॉस्मेटिक कवर, निक्कर पहनो और चलो। फिर वो जब हाथ पकड़ के उसको कंप्लीट कराते हैं तो उसको लगता है यार मैं खुद अपने आप को रोक रहा था, और ये बात सही है, इसमें डिसेबल और नॉन डिसेबल का कोई लेना देना नहीं है, आप भी अपने आप को रोकते हो, वो भी अपने आप को रोक रहा था। तो ये सपोर्ट सिस्टम हमने तैयार किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सपोर्ट सिस्टम मिले या ना मिले, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। सोसाइटी बना रही है कि नहीं बना रही है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये आप सबसे भी यही बोलता हूँ कि आप पूछो कि आप क्या अपने दायरे में दूसरों के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो सपोर्ट सिस्टम अपने आप बन जाएगा, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप भी रोते बैठोगे, जो भेड़ चाल सबकी लगी हुई है, और आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, टाइम पास करोगे जिंदगी में। ये जो आप ब्लेड रनिंग की बात कर रहे हैं, इसका पूरा जो इम्पैक्ट काफ़ी मुश्किल हुआ होगा आपके लिए, उसका आप वो सही बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि जो ये नकली टांग ये नॉर्मल लेग है, नॉर्मल ये देखिए ब्लेड देखिए, आप पकड़िए जरा, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। जब मैंने भागना शुरू किया था, पहले ऐसी टांग से भागना शुरू किया था, ये नॉर्मल टांग है, ये ब्लेड है। मैंने 3 हाफ मैराथन इससे भागी थी, जो मैं आपको बता रहा था ना कि तेज चलते हुए फिर मैं उछलने लगा, तो वो हॉप राउंड, उसमें क्या करता था, इस टांग पे उछलता था और इसको खींचता था, इस पे उछलता था और इसको खींचता था। तो फिर एक दिन मेरे को एडजुटेंट जनरल, जो सो कॉल्ड HR हेड आर्मी के होते हैं, वो मिले, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सबरवाल। उन्होंने बोला बेटा और मैं रिटायर्ड था उस समय, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हाउ कैन वी हेल्प यू। ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन आर्मी, बाहर वालों को कोई पूछता ही नहीं है एक दूसरे को। मैंने बोला सर मुझे पता चला है कि कुछ ब्लेड नाम की चीज, एक ऐसी टांग होती है जिससे आप नॉर्मल तरीके से भाग सकते हो, अभी तो मैं ऐसी उछल कूद कर रहा हूँ। कहते हैं फिर देन ही इम्पोर्टेड दिस ब्लेड। उस समय वो कोई 8-9 लाख का था 2011 में। देन आई स्टार्टेड वेयरिंग दिस, तो मुझे लगा कि यार ये तो आसान होगा भागना, मगर वो इस भागने से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप ये देखिए कि एक तो इस कटी हुई टांग में 28 छर्रे हैं, टोटल 73 मैंने बताया, 28 सिर्फ इसी में है। अब लोहे का कोई टुकड़ा, बम का, आपके गोली लगी हुई हो आपकी टांग में, जिसके लगी हो वो महसूस करता है क्या दर्द होता है, जिसके नहीं लगी वो सिर्फ इतना, आप पिन चुभा के देख लो यहाँ पे अपने टांग में, उसके बाद जूता पहन लेना, अगर पहना जाएगा और चल सकोगे तो इमेजिन करो कि इसको पहनने में कितना दर्द होता होगा। काफ़ी हैवी भी है और हैवी है। आप इसको पहन के भाग रहे हो 2.5 घंटे 3 घंटे, तो ये जो स्किन है इसमें रगड़ लगती है। अब आप 5 मिनट तक ऐसे करो, जलन होने लग जाएगी, और आप 2.5 घंटे भाग रहे हो, कि कहाँ से इतना, मतलब क्या ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे भी मैंने ये सोचा कि अगर भगवान ने ये चैलेंज मुझे दिया है तो अब इसका आंसर निकालते हैं कि ये चोटें बंद कैसे करें। मैं जब इसको भाग के ख़त्म करता था तो मेरे ये मांस के टुकड़े निकले होते थे, यहाँ से जो ये एंड पार्ट है ना इसमें, अच्छा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है मेरा, और सिमिलरली इस पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये बैलेंस बनाना पड़ता था कि मैं किसी पत्थर के ऊपर ना आ जाऊँ, कोई गड्ढे के ऊपर ना। लोग मुझे बोलते थे यार रनिंग इज़ अ मेडिटेशन, आप एंजॉय। मैं कहा भैया तुम्हारे लिए होगा मेडिटेशन, मेरे लिए तो हर पत्थर, ये घुटने इतने गिरता था, मैं इतना गिरता था कि हर गिरने पे ये होता था कि यार छोड़ दे, फिर बंदा नहीं छटना नहीं है, खड़े हो जाओ फिर करो। तो ये चोटें लगती थी तो इतनी होती थी कि ये, अब अगर आपके किसी चोट लगती है तो क्या होता है, स्वेलिंग होती है, खून बहता है, लाल सॉक्स निकाला करता था हर बार में जब इसको ख़त्म करता था रनिंग की। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद जिम्मेदारियां भगवान ने दी थी, क्योंकि अब जो एम्पुटीज़ हैं उनको ये चैलेंजेस नहीं है। मेरे पास आंसर कोई देने वाला नहीं था। तो जैसे आपने पूछा था कि सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो ये सपोर्ट सिस्टम बनाया फिर मैंने कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको आंसर निकाल के दूँ। तो मेरे को तो अपने आप आंसर मिल ही रहे हैं, तो उनको आंसर मिल जाएंगे तो सबकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो देखिए अब आप कीर्तिमान एम्पुटी आपको हर गली मोहल्ले में घूमते हुए मिल जाएंगे, दौड़ भी रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं, पहाड़ों में भी चढ़ रहे हैं,
मानसी जोशी नाम की एक लड़की है जिसके लिए बारबी ने स्पेशल एम्पूटी बारबी बनाई और वो पैरा बैडमिंटन चैंपियन है, अर्जुन अवार्ड जीत चुकी है। तो ये कीर्तिमान सारे के सारे सपोर्ट सिस्टम अपने आप बन गया और लोग करते चले गए क्योंकि उनको पता चल गया कि यार ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अब अगर ये सारे एम्पूटी इतना कुछ कर सकते हैं तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ज़िंदगी उनकी इतनी मुश्किल है या आपकी इतनी मुश्किल है। जो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ से हम बात कर रहे हैं जिससे ये सब मुमकिन होता है, जो भी आप कह रहे हैं, बिकॉज वो जो अंदर से जो आपका जो ताकत है आपको आपके पास, वो हम सब एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ दैट पोटेंशियल टू हैव दैट स्ट्रेंथ. व्हाट इज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम, जैसे डीपी जी कह रहे हैं कि इट्स यू नीड द चैलेंज, तब हमारी स्ट्रेंथ हमको महसूस होती है, पर बिना चैलेंज के हम ये स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं? ऐसे होता है ना, कोई एडवर्सिटी आती है तो आपके अंदर की एक कोई ताकत आपको वो एडवर्सिटी क्रॉस करने में मदद करती है. बट अगर जब हम बहुत कंफर्टेबल लाइफ लीड करते हैं, इसे इवन टुडे नाउ डेज दैट्स व्हाई पीपल से कि आजकल लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो गई है इसलिए रेजिलियंस कम हो गई है कि एवरीथिंग इज जस्ट टेकन केयर ऑफ. जब मेहनत ज़्यादा होती है तो रेजिलियंस अपने आप बढ़ती है, लेकिन वो इनेट स्ट्रेंथ, वो इनेट शक्ति तो हर एक आत्मा में है. लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंफर्ट की आदत पड़ जाती है तो छोटी बात में भी रेजिलियंस नहीं फील होती है. मतलब इतनी सी बात में भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही कुछ फेस करने की ताकत यूज़ नहीं हो रही है. तो इसीलिए थोड़ा सा अपने पे वर्क करें. वो इनेट जो विद मेडिटेशन ऑफ कोर्स वी वर्क ऑन द इनर स्ट्रेंथ, बट सिचुएशन में अगर आप स्टेबल रहेंगे तो आपकी इनर रेजिलियंस अपने आप क्रिएट होती जाएगी. जैसे कहा कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ विक्टिम टू द सिचुएशन, हमने उसको अपना पर्पस बना के औरों की जीवन आसान कर दी. तो हम कितनी बड़ी उस एडवर्सिटी को हमने कितना बड़ा मिरेकल बनाया सभी के लिए, और अपने लिए नहीं, सिर्फ सभी के लिए. अब हम अपनी जीवन को देख लेते हैं. हर एक जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, आप अपने जीवन की एक सिचुएशन चुनिए. उस सिचुएशन का साइज बहुत छोटा होगा इस साइज, बट वो आपके लिए तो एक सिचुएशन ही एक पर. अब उसमें आप देखिए कि आई हैव टू राइज अबव दिस सिचुएशन. एंड जैसे आप उस एंगल से सोचना शुरू करेंगे, योर पावर्स आर ऑल देयर. लेकिन हमने अभी तक क्या किया था, नहीं सिचुएशन मुझे नीचे लेकर जा रही है, सिचुएशन बहुत बड़ी है. हम सिचुएशन से बहुत ऊपर है और हम जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं. एवरीबडी वॉचिंग जस्ट नीड्स टू टेक अ मिनट ऑफ साइलेंस एंड जस्ट से आई एम गोइंग टू गो अबव दिस एंड क्रिएट अ मिरेकल. एंड वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. एंड डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स हु इज टेलिंग यू कि नहीं ये आप नहीं कर सकते या ये नहीं हो सकता. लेकिन हम छोटी सी सिचुएशन में बैठ जाते हैं, नहीं सिचुएशन इतनी बड़ी है तो हम इट्स ओनली हियर. सो लर्निंग कि ये तो बड़ी एडवर्सिटी में करें, हमारी बातें कौन सी हैं, छोटी 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 है, बट सिर्फ उसमें मन को बात से हार नहीं देना. मन को जीतना होगा तो परिस्थिति पर तो जीत पा लेते हैं. और वो जो आप बोल रहे हैं, जो एफर्मेशन, जो स्थिति है मन की, दैट हैज टू बी कंसिस्टेंट. पर उसके लिए रूटीन भी लगता होगा. तो आपकी ट्रेनिंग के लिए रूटीन क्या थी? जैसे दीदी ने बताया कि कोई अगर बोल रहा है आपको, तो मैंने बच्चों को क्या बताया, वही आप उन सबके लिए लागू होता है. कोई बोल रहा है ना, तो यू शुड गो क्लोज योर आइज. अब देख, अब करता हूँ मैं. दैट शुड बी ए रिमाइंडर फॉर यू. कोई बोल रहा नहीं कर सकते हो, दैट शुड बी रिमाइंडर फॉर यू, अब तो करना है. तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर गिविंग दैट अफर्मेशन टू योरसेल्फ, रेजोल्यूशन टू योरसेल्फ कि भैया कर. तो वो तो हेल्पफुल है आपके लिए. मैं तो कह रहा हूँ और लोग बताएं मेरे को कि नहीं कर सकते आप. पर आपका कोई रूटीन रहा होगा थ्रू दिस ट्रेनिंग ये सब करने के लिए, बिकॉज कोई भी एथलीट जो भी करते हैं आज, उसका कुछ आपको काफ़ी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा ना? बिल्कुल रहा था रूटीन. और साथ में मैं नौकरी भी कर रहा था, साथ में मैं पेरेंटिंग भी कर रहा था, साथ में मैं अपनी बाकी ड्यूटीज भी निभा रहा था. मेरा कोर्ट केस भी चल रहा था पेंशन का. देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर गोइंग ऑल टुगेदर. लेकिन क्या था कि ये मेरे को रनिंग ने मेरे को ना जो हेल्प करी, मेरे एम्पुटेशन के साथ साथ मेरा इंटेस्टाइन्स का पार्ट भी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, बाउल मूवमेंट बड़ी गड़बड़ होती थी. जब मैं दौड़ता नहीं था तो मैं ये नी की सर्जरी हो रखी है, ये नम है पूरा अभी भी. तो इसलिए मैं जैसे जोक अराउंड करता हूँ ना कि लेफ्ट वन इज़ नो मोर राइट, राइट वन इज़ नो मोर लेफ्ट एंड लेफ्ट वन इज़ नो मोर राइट. क्योंकि ये भी ख़राब है, यहाँ भी कटा हुआ है, यहाँ भी कटा हुआ है, सब जगह तो गड़बड़ है. वो पार्किंसन का भी इसमें इम्पैक्ट आ गया. तो यहाँ पे मैं गर्म पट्टी बांधता था, यहाँ पे मैं गर्म पट्टी बांधता था क्योंकि यहाँ ठंड लगती थी, और इस तरफ गर्म पट्टी बांधता था और इधर पसीने आते थे.
तो मैंने वो गर्म कमीज को ऐसे काट के एप्रन की तरह बनाया हुआ था कि मैं इस तरह बांध सकूँ, यहाँ ठंड लग रही है, यहाँ गर्मी लग रही है, अब सोना भी है, तो ये दिक्कतें हुआ करती। तो फिर म्यूकस, फ्लैटुलेंस, गैस, इतनी बीमारियां थी क्योंकि वो इंटेस्टाइन्स गड़बड़ थी। तो फिर जब रनिंग करनी शुरू करी तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो मसल्स थी और ये जो ऑर्गन्स थे ये भी लाइन पे आने शुरू हो गए कि भैया ये जो डीपी सिंह है ना, ये हमारा बॉस। देखो आप अपने खुद के बॉस हो। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, यू आर योर ओन बॉस। ये जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, माइंड है, ये आपको, आपके चेले हैं, आपने इनको काबू में करके रखना है। ये आपके ऊपर हावी नहीं होने चाहिए, ये आपके अनुसार चलने चाहिए। तो जब मैंने इनको खींचना शुरू किया, उसके लिए आपको इसको कंट्रोल करना पड़ता है थोड़ा सा, इसको मन को जीतना पड़ता है थोड़ा सा। तो जब ये करके जब मैंने फिनिश किया तो मुझे लगा यार नींद भी अच्छी आई, पेट भी बढ़िया साफ हुआ, भूख भी बढ़िया लगी। अब अगर भूख लग रही है और नींद अच्छी आ रही है तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। ये दो चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो दैट मीन्स आप यूर लकी गाय। तो वो चस्का चढ़ गया, अब भागो भागो और करो और करो और करो। तो करने के लिए अब मेरे को तैयार होने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि हालांकि ये ठीक हो गया मामला, कंट्रोल में आ गया, लेकिन फिर भी 3 बार कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी है इंटेस्टाइन्स की। तो वो 3 बार मुझे मिनिमम जाना ही पड़ता है शौच क्लीन करने के लिए। उसमें थोड़ी देर रुको, फिर प्रेशर बनेगा, फिर जाओगे, फिर आप तैयार हो रहे हो, कभी टांग फिट नहीं आ रही, फिर दोबारा निकाला। और ये पहनना निकालना इज़ नॉट वेरी इजी, बड़ा इसको जोर निकालना पड़ता है। और वो ब्लेड पहनने के लिए तो और भी डबल डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको टाइट करके पहनना पड़ता है आपको। तो 1.5 घंटा सिर्फ अगर आपको तैयार होने के लिए चाहिए, और अगर आपने 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, जिसमें घंटे भर की जर्नी है, जो 8 बजे घर से चलना है, तो माइनस में अगर रिवर्स में जाओगे तो कम से कम कई बार मुझे 2:30 बजे उठना पड़ता था प्रैक्टिस करने के लिए। और आप मतलब मान लो 21 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें मेरा बेस्ट टाइम 21 किलोमीटर का 2 घंटे 10 मिनट है। तो प्रैक्टिस में कम से कम 2.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो वो रिवर्स में जाके सारा कुछ करना पड़ता था। और साथ में फिर आप, बच्चा भी है, आपकी ड्यूटी का काम भी करना है, आपके पेन तो फिर भी होते हैं, दौड़ने के बाद चोटें लग गई तो उसको भी ख्याल रखना है। तो ये रूटीन बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि करने के लिए रूटीन बनाना है, रूटीन से आपको टूटना नहीं है। अक्सर हम लोग रुक क्यों जाते हैं, क्योंकि यार बड़ा मुश्किल है, 9 बजे दफ्तर पहुंचना है, तो अब 2:30 बजे कैसे उठोगे। तो जो पैशन था वो मेरे को चला के रखता था, क्योंकि वो प्रॉमिस किया हुआ था ना कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है लाइफ की। उसके लिए सबसे ज़्यादा अपना दोस्त बनना है, और दोस्त बनने के लिए आपको पैम्पर नहीं करना होता अपने आप को। ये कन्फ्यूजन है लोगों में। मैं अपना सबसे बढ़िया दोस्त हूँ तो अपने आप को पैम्पर करके रखूँगा। मैं हूँ जैसा हूँ, बढ़िया हूँ, मुझे जो लगता है अच्छा है। मेरे अंदर कमी क्या है उसको निकाल के इम्प्रूव करना इज दी फ्रेंडशिप। वो करते थे साथ में। आई थिंक इट्स ये सब एक साथ किए तो फिर जाके पूरा पिक्चर, पूरी पिक्चर कंप्लीट कहानी जो आपको 5 मिनट में बताई है, इसके पीछे आई नो ऑफ कोर्स नहीं। एंड और यू नो इसमें जो आपकी जो अकेले की पेरेंटिंग आप जो बोल रहे हैं, और काफ़ी दूसरी चीज़ें हैं, वो भी अगर साथ में मिलाए, बट हाउ एज अ पेरेंट हाउ डू यू how has that journey been? That's a beautiful journey, because that is the most important responsibility of any parent. Because मेरे कारण, भले ही वो अलग सोल है, उसकी अपनी जर्नी है, वो अपने हिसाब से जो करेगा करेगा, लेकिन नेचर ने या भगवान ने या कुदरत ने या परमात्मा ने उसको मेरे थ्रू भेजा है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी तरफ से वो कुछ करने की कोशिश करूं जिससे उसको एग्जाम्पल मिले, ज्ञान नहीं, एग्जाम्पल मिले। मैं आपको एक छोटा सा वो देता हूँ। काइनेटिक चलाना सीख लिया था मैंने बुलेट बेच के आफ्टर एम्पुटेशन, और मैं बेटे को सामने खड़ा करके ना स्कूटर पे जा रहा था कहीं से, तो सामने रेड लाइट थी, मैं रुक गया, ग्रीन हुई तो चलने लगे। तो अक्सर जो होता है हमारे साथ, वो भाई साहब दूसरी तरफ से कोई निकले, वो काट के, मैंने बैलेंस तो बना लिया, मेरे मुंह से निकला, ओ तेरी साली, और मेरे छूटते ही मेरे बेटे ने बोला, ओ तेरी, और वो थप्पड़ था मुंह पे कि भाई साहब अब आप पिताजी बन चुके हो। हालांकि वो 4-1 साल का था। मैं ये भी सोच सकता था, अक्सर जैसे लोग सोचते हैं कि ये बच्चा है छोटा, इसको क्या पता चलता है, लेकिन वो थप्पड़ था कि अब आपने वो आचरण जो शायद कभी कभार गलती में हो भी जाता था, नहीं करना है,
जिसके कारण इसको एग्जाम्पल मिले कि मेरा बाप ऐसा है। तो रिलेशनशिप वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच आई फील दैट आई कुड कन्वे टू हिम पॉजिटिवली कि कैसे हैंडल करनी है। हालांकि डिवोर्स हुआ, उसके बावजूद कभी उसको ये फीड नहीं गया कि वो गलत है मैं सही हूँ या मैं गलत है वो सही है। आज भी मेरे एक्स पार्टनर के साथ मैं फ़ोन उठा के कर सकता हूँ, शी इज सेटल इन कनाडा, लेकिन उसको ये सिखाने की कोशिश करें कि बेटा सब अपने अपने दायरे में सही है। परिस्थितियों के हिसाब से लोगों के कई बार काम ऐसे हो जाते हैं जो शायद किसी को सही लगते हैं, किसी को गलत लगते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू शेयर कि आज वो मुझसे ज़्यादा काम और मुझसे ज़्यादा मैच्योर है कई चीज़ों में। आई थिंक role of parents in raising the next generation is so important, you know. Of course, यहाँ पे तो challenges के बावजूद आप ये देखिए सर कि लोग अक्सर क्या बोलते हैं, नौकरी है तो हम कैसे बच्चों का ख्याल रखें, ग्रैनी के पास छोड़ दिया, इसके पास छोड़ दिया। मेरी नौकरी भी थी, मैंने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग भी करनी थी, मेरी डिसेबिलिटीज़ भी थी, मैं साथ के साथ NGO भी देख रहा हूँ, साथ के साथ सोसाइटी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर एक अकेला व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है और बच्चे को भी मैं पालने की कोशिश कर रहा हूँ, और उन रिश्तेदारों में, उन लोगों में रहते हुए जो अपनी तरफ से वो उसको फीड भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो गलत थी, उसने ये करा, तू ये है वो है, तो पॉसिबिलिटी फिर भी हुई। तो यार ये अकेली नौकरी में रो रहे हो आप, not done that too if you are not prepared to become a parent so that you can nurture the kid correctly, positively, then don't become a parent in my opinion. कई लोग ये भी बोलते हैं ये बिगड़ा हुआ है इसकी शादी कर दो, शादी करने के बाद भी वो बिगड़ने से नहीं हटा, और अच्छा बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब यार दूसरी जनरेशन को भी आप बर्बाद करने लगे। नहीं, बट इधर जो हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं बहुत से पेरेंट्स ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, सो उनके लिए what is the message from DPG's story? DP's story is so powerful, right? What can parents learn? Again, the message is not to be the victim to the situation, ना। तो विक्टिम नहीं बने, पहले सा मालिक बनना है, अपने शरीर का मालिक। फिर शरीर का मालिक बनने से पहले अपने मन का मालिक बने हैं। मन को कभी बहाना नहीं देने दिया, मन को टाइम बाउंड रखा, मन को डिसिप्लिन में बाउंड रखा। दैट्स ऑल दैट एवरी पेरेंट हैज़ टू डू। जैसे उन्होंने कहा नौकरी भी करनी और इतना सारा कुछ, और बाकी सब कुछ सिर्फ नौकरी करनी है, घर संभालना। लेकिन क्या किया, मन को डिसिप्लिन में बांधा, मन को पावरफुल बनाने के स्टेप्स लिए, फिर ऑब्वियसली बॉडी की ट्रेनिंग की। तो वो सारी जो वाइब्रेशन है ऑफ डिसिप्लिन, ऑफ रेजिलियंस, वो ऑटोमेटिकली बच्चे की स्ट्रेंथ बन रही है। और अगर हमारी वाइब्रेशन स्ट्रेस की है, एंग्जाइटी की है, तो वो भी हमारे बच्चे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग इज़ नॉट जस्ट व्हाट वी डू, पेरेंटिंग इज़ हु वी आर। डूइंग तो सब पेरेंट करते हैं, वो तो परफेक्ट है, लेकिन हु वी आर एज अ पर्सन ऑल्सो, नॉट कि बुरे लोग हैं, हम बुरे नहीं हैं, लेकिन लोअर एनर्जी पे वाइब्रेट करेंगे तो फिर पेरेंटिंग में वही एनर्जी जा रही है। तो अपनी लाइफ को उतना ऊंचा उठाएं कि आपके बच्चे को वो ऊंची शक्ति मिले कि वो अपनी एनर्जी को फिर ऊपर उठाए। दैट इज पेरेंटिंग। सो नॉट जस्ट फिजिकल पेरेंटिंग, इंटेलेक्चुअल पेरेंटिंग, वाइब्रेशनल पेरेंटिंग स्ट्रेंथन्स द माइंड। और उसी से स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, रिलेशनशिप्स सब बन सकते हैं, विदाउट विच हमारी पूरी फैब्रिक ऑफ सोसाइटी इज ब्रोकन। आपको बताता हूँ कि मेरी वाइफ कनाडा में रहती हैं, एक्स वाइफ, और वो शुरू में भी कभी कभार इनसे बच्चे से बात करना चाहती थी, तब मैं थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करता था, क्योंकि मैंने कहा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि वहाँ पे है तो आ नहीं रही है, तो मैंने कहा अभी उसकी उम्र नहीं है। बट वंस ही क्रॉस्ड 18-19 आई सेड नाउ ही इज इंडिपेंडेंट, नाउ एज पर लीगली ऑल्सो। तो शी केम टू इंडिया। उन्होंने बोला कि मैं मिलना चाहती हूँ, आप इनको भेज सकते हो बाहर। मैंने कहा देखो लीगली तो छोड़ दो, बायोलॉजिकली यू विल नेवर बी अ पर्सन जो इनकी माँ नहीं है, माँ हो बायोलॉजिकली हमेशा रहोगी। तो मैंने कहा इनको बुलाने की क्या लो, आप मतलब बाहर जाने भेजने की, आप घर आओ। वो घर आए, शायद उनको लग रहा था कि घर क्यों नहीं बुलाएंगे। घर आने के बाद मैंने इन दोनों को अलग इंडिपेंडेंट छोड़ दिया कि लेट देम सेटल वट एवर मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और आइडियाज दे हैव विच दे नेवर शेयर्ड विद मी, सेटल होने दो। आज ही इज़ कम्फर्टेबल विद हर ऑल्सो, माँ के साथ भी मेरे साथ भी, और कभी भी मैं भी उनसे कभी ऐसा नहीं है कि बात करने में हिचक होती है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप सोसाइटी के एंगल से देखते
वो कैसी लड़की थी, माँ थी, वो छोड़ के चली गई बच्चे को, अब उसको तू कैसे, यार क्या बातें हैं ये। अगर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जर्नी जी रहा है, ये बात समझ में आ जाए, और वो आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट ये कर रहा है जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आपके लिए, ताकि आप अपनी जर्नी को ढंग से जी सको और जो कर्मा सेट ऑफ कर सको, तो क्या गलत किया किसी ने? कुछ भी गलत नहीं किया। तो आप क्यों गलत करोगे उनसे मिलाने के लिए? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, लव और हैप्पीनेस या समथिंग एल्स? मेरे को तो गुरबाणी की वो लाइन याद आती है, गुरु गोविंद सिंह जी की है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखी हुई है। उसमें लिखा है उन्होंने कि बास कियो बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बतायो, साच कहूँ सुन लेओ सभय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। वो प्रेम करना सीख लो सिर्फ। वो एक इमोशन जो नेचुरल है हर व्यक्ति में, लव प्रेम सबके अंदर है, पर उसको हम वी डोंट अनलॉक इट टू द एक्सटेंट दैट वी शुड। अनकंडीशनल, बट अनकंडीशनल। तो जैसे अगर वी डोंट नो पीछे क्या हुआ होगा फैमिली में, लेकिन अगर कह रहे हैं कि छोड़ के चले गए, लेकिन उस बात को रिश्ते के बीच में नहीं आने दिया है, ये समझते हुए कि हर आत्मा की अपनी जर्नी, हर आत्मा का अपना कर्म। लेकिन हम नॉर्मली ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज दिस इज द हस्बैंड, शी इज द वाइफ, उनका रिश्ता सपोज नहीं बना, इट इज़ द जर्नी ऑफ दोज टू सोल्स। लेकिन वो जो बच्चा है उसका कार्मिक अकाउंट अलग होता है। तो हमें अगर हमारा किसी के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं भी ठीक बना है, हमें दूसरे का कार्मिक अकाउंट स्पॉइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कार्मिक अकाउंट उस सोल के साथ बिल्कुल सेपरेट है। तो ये अंडरस्टैंड करते हुए हमें दूसरे के रिलेशनशिप के डायनामिक्स को बिल्कुल नहीं बिगाड़ना। एंड दैट कैन बी एनी रिलेशनशिप। समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि सपोज समबडी इज नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद हर इन लॉज, तो वो बच्चों को भी उनके साथ उतना नहीं करने देती, लेकिन वो बच्चे का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो कार्मिक अकाउंट है वो डिफरेंट है। तो इवन इफ आप किसी के साथ नहीं आपकी बन रही है, वो आपका कार्मिक अकाउंट है, आप दूसरे के कार्मिक अकाउंट को नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट डिफरेंट है। सो लेट देम हैव दैट ब्यूटिफुल कार्मिक अकाउंट। सो दैट इज लव, नॉट if it's not for me, then it's not for you. Then that's because not then love. you are adding again more That's to your you're karma. adding more to the karma. Yeah, that is what. मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा इफ यू वांट टू गो टू कनाडा, क्योंकि जनरली होता है ना कि खासकर पंजाब की कनाडा जाना है और अमेरिका जाना है। मैं कहा तू जाना चाहता है? 2 बार पूछा मैंने अलग अलग टाइम से, ताकि उसको ये ना लगे कि मेरा बाप मुझे पता ही। व्हाट डिड ही से कि पापा यू आर माई डैड एंड यू आर माई मॉम, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। अब उसको मैं रोक लूं नहीं जाने की जरूरत, तो फिर जबरदस्ती हो जाएगा ना। अभी वो दिल से बोल रहा है, तो हैप्पीनेस है। मुझे लगता है कि ना लोगों के पास हैप्पीनेस, वो दर्द की कमी है, तो इसलिए वो हैप्पीनेस नहीं ढूंढते, वो और दर्द ऐड ऑन करते हैं। लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं हैप्पीनेस, पर ऐड जो करके आते हैं वो दर्द है। ढूंढते सब हैं हैप्पीनेस। आपने ना मुझे वो याद दिला दी। परसों एक मैं क्लिप देख रहा था, किसी नाम में भूल गया उनके, वो अच्छे खासे एक्टर हैं, बड़े तगड़े, सौरभ। तो वो बता रहे थे रजनीश की किताब लिखी हुई है, उसमें ना जोक्स लिखे हुए हैं। तो मज़े की बात यह है कि वो जोक यहाँ पे सरदारों के ऊपर होता है, अफगानिस्तान में पठानों के ऊपर होता है, अमेरिका में वो टेक्सन्स के ऊपर होता है, और किसी और मुल्क में किसी औरों के ऊपर। तो पता चला, एक्सप्लोर किया कि इसकी हिस्ट्री कहाँ है, बना कहाँ है। तो पता चला कि जूइश या कहीं किसी एक ऐसी मतलब सोसाइटी में वो जोक तैयार हुआ था जिन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं ज़िंदगी में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी इस लेवल तक नहीं पहुँचे हो दर्द के कि आप अपने ऊपर जोक करना सीख रहे हो, तो अभी आप दर्द के लेवल से बहुत नीचे हो। करेक्ट। हंसना जिस दिन सीख जाओगे दर्द में, उस दिन आपका दर्द के लेवल की सीमा पूरी हो गई। अभी बहुत नीचे हो, इसका मतलब नहीं। आई थिंक जो ह्यूमन जो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आप बोलते हो हैप्पीनेस और आपने लव बोला, या वी टॉक ऑफ पीस, ये जो चीज़ें हैं ये सब हम में अंदर हैं। एंड आई थिंक व्हेन यू फेस चैलेंजेस, एंड मे बी आई डोंट नो हमारे देश में, बिकॉज यू नो देयर इज द सोल्जर्स फेस चैलेंजेस ऑन द फ्रंट 24/7, रिलेशनशिप, जो भी आपने सही चीज़ें, आई थिंक बहुत से सोल्जर्स अलग अलग
क्वांटम में सब फेस करते हैं. बिल्कुल करते But do we as society respect soldiers enough? How should civilians work with soldiers? I mean, I'm just asking you for your thought. You're a soldier, because we all feel the emotion. I know everybody, but आपका क्या ख्याल है उसमें? देखिए, एक तो ना इस बात को बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि सोल्जर्स क्योंकि एक्सट्रीम चैलेंजिंग सिचुएशन में रहते हैं, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो डेजर्ट हो, कहीं पे भी, तो उनको ना हंसना आता है. ह्यूमर इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सोल्जर. हम ऐसे मज़े करते हैं ज़िंदगी के हर जगह पे कि आप पूछो मत, आपके बस की नहीं होगी इतना मज़े करना. मैं मतलब एम्पुटेशन के ऊपर भी मैं जोक करता हूँ कि खड़े होकर बात करते हैं हमेशा. आपको पता है कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या है अगर टांग नहीं है तो? अभी आप रेल में, अभी तो रेल में लोग सफ़र करना कम हो गए हैं, क्योंकि जब रेल में जाते थे तो क्या होता था कि चप्पल चोरी ना हो जाए. अब मैं तो पहनता ही एक चप्पल हूँ, कौन चोरी करके लेके जाएगा? है ना फायदे की बात. तो लाइफ को अडेप्ट इस हिसाब से कर लेते हैं कि यार मज़े करो और ऐड ऑन मत करो स्ट्रेस अपनी ज़िंदगी में. अब रही बात आपकी कि आप सोल्जर्स के लिए क्या कर सकते हो, तो देखिए ये एक एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी सिचुएशन वाली बात है. व्हेन आई रिलेट इट टू सम अदर वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे मैं जब मैं यूएस में गया था तो मुझे टेक्सास में ही एक इंडियन इंडिपेंडेंस डे का एक फंक्शन हुआ था जिसमें गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था. आप हैरान हो गए सुन के कि उसमें एक उनके गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव अपनी बेटी के साथ आया हुआ था. तो ही वॉज सपोज टू स्पीक बिफोर मी ऑन डायस. मैं बैठे थे और वो बैठे थे. वो उठ के गए स्पीकर माइक के पास और पहला काम उन्होंने पता क्या किया, बेटी ने और उस व्यक्ति ने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखते हुए मुझे बोला, मेजर सिंह थैंक यू फॉर योर सर्विस टू द नेशन. मैं तो उनके नेशन से बिलोंग नहीं करता, मैं तो यूएस आर्मी का नहीं हूँ, मगर सोल्जर इज ए सोल्जर, वेदर वो इंडियन आर्मी का हो, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी का हो, चाहे वो अमेरिकन आर्मी का हो. रिस्पेक्ट सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए. ही इज डूइंग हिज ड्यूटी. जो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि लोगों के दिल में नहीं है, लेकिन शायद उनको वो एक्सप्रेस करना की अवेयरनेस अभी नहीं है ढंग से. और साथ के साथ अगर वो एक्सप्रेस कई बार करना चाहते भी हैं ना, तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो सेल्फिश हो जाते हैं. यार मैं अपना काम पहले कर लूँ, अगर इस सिचुएशन में मेरे को बहुत ज़रूरी है अपना काम करना तो वो कर लेता हूँ, वो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि वो भी एक तरीके से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसी परिस्थितियों को नॉर्मल माना गया हमारे देश में. अपना काम निकालो, उसके बाद देखी जाएगी बाद में. सोल्जर को ये सिखाया नहीं गया है. सोल्जर की ट्रेनिंग में उसको हर सिचुएशन में सबसे पहले देश को ऊपर सर्वोपरि रखना है. देश के बाद आती है आपकी टीम, आपने उनका ख्याल रखना है. अपने बारे में आप सबसे बाद में सोचोगे. अब ये थॉट प्रोसेस मैं कहता हूँ हर एक सोल्जर अपने दिलो दिमाग में रखता है. इसीलिए तो आप देखते हो कि जब सारी मशीनरी हर जगह फेल हो जाती है तो इंडियन आर्म फोर्सेस तीनों में से कोई सी भी बुला लो कहीं पे, वो सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि देश सर्वोपरि, उसके बाद उनकी टीम का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है एज ए टीम लीडर. अपना ख्याल मेरा अपने आप रखा जाता है. तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप देश के बारे में अगर सबसे पहले सोचने लग जाओगे तो सोल्जर का ग्रेटिट्यूड अपने आप कन्वे कर दोगे. आप देश के लिए वो कर रहे हो जो देश को जरूरत है. छोटी छोटी चीजें भी काफी हैं. सो मच सो कि अगर प्रधानमंत्री झाड़ू उठा के खुद सड़क पे जा सकते हैं मोदी जी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने चैलेंजिंग 1 के बच्चों को 18 सिटीज में स्वच्छबिलिटी रन करवाई है, जिसमें पहले वो दौड़ते थे, अपनी एबिलिटी प्रूव करते थे, क्या हो सकता है उसकी लिमिट को प्रूव करते थे. उसके बाद झाड़ू उठा के एक्चुअल में गंदगी को साफ करके एकदम गंदा कूड़ा मेरे साथ लग के साफ करते थे. बच्चे, स्कूल के डिसेबल लोग सब मिलके उसके बाद उस साफ सुथरी जगह को हैंड ओवर कर देते स्कूल को कि लगाओ यहाँ अपना बोर्ड, हमने साफ किया और ओन अप करो इसको. आप जब जा रहे होते हो, मेरा बेटा मेरे को टोक देता है बाई चांस, अगर गलती से मेरे से कुछ हो भी जाए ना, पापा ये बाहर क्यों फेंक दिया आपने रैपर. तो आप क्या अपना एग्जाम्पल सेटअप देखिए. यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट एनीथिंग आउटसाइड. ज़्यादातर हम लोग क्या कंसर्न होते हैं, वो गलत है, ये गलत है, उसने ये ठीक नहीं किया, उसने वो ठीक नहीं किया. मेरा जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, मेरा जो दायरा है, उसमें मैं अपना आप काम ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इतना करने लग जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. आप आज देश के लिए क्या करा है, उसमें आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्या जो भी आप ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप इनकम टैक्स में हो, चाहे आप चपड़ासी हो, चाहे आप रेलवे में हो, चाहे आप बैंक में हो, क्या आप अपना काम पूरी तसल्ली बख्श सेवा
रूप में कर पा रहे हो, किया है कि नहीं किया है। उसके बाद क्या आपने अपने आसपास के जगहों को संभाल के माँ की तरह रखा है कि नहीं? माँ की तरह रखे क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्या बोलते हैं हम भारत को? क्या नाम यूज़ करते हैं हम भारत में? भारत माता। भारत माँ। और अपनी माँ को हम गंदा रखना पसंद करते हैं। मतलब मेरी माँ को अगर गंदगी पड़ी होगी तो मैं बोलता हूँ माँ खुद नहा लेगी, साफ रखने की कोशिश करते हैं ना। तो भारत माँ को साफ क्यों नहीं रख सकते भाई? वैसे तो बड़े झंडे गाड़ दो, भारत माँ की जय, भारत माँ की जय। कौन सी जय? तो मेरा ये सिर्फ इतना दरखास्त है कि अगर अपनी माँ समझते हो सच में भारत माँ को, तो माँ की तरह उसकी रिस्पेक्ट भी करना सीखो, उसको साफ सुथरा प्रफुल्लित अच्छा स्वच्छ भी रखना सीखो, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सोल्जर की आप अपने आप रिस्पेक्ट कर लोगे, क्योंकि सोल्जर इसी के लिए तो लड़ रहा है। सोल्जर भारत के लिए लड़ रहा है और भारतवासियों के लिए लड़ रहा है। ना भारतवासी फिट है, ना भारतवासी भारत को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। सोल्जर का मरना, सोल्जर का डिसेबल होना सब बेकार जा रहा है। सारी सोसाइटी को मिलकर ये करना पड़ेगा। ऐसा है ना, सोसाइटी को मिलने की कोई जरूरत नहीं है, आप शुरू करो। नहीं, उसी तरह से होगा। हर एक व्यक्ति ने अगर अपना रोल ठीक किया तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। एग्जैक्टली। तो मैं अगर 100% डिसेबल होने के बाद, मैं आपको बताऊं, आज की डेट में मुझे कोई स्टेट ओन नहीं करता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे? जब मैं इंजर्ड हुआ था तो मेरे पिताजी दिल्ली में रहते थे, तो उस समय कारगिल का बड़ा हाइप था। स्टेट गवर्नमेंट अलग फाइनेंशियल सपोर्ट देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग फाइनेंशियल सपोर्ट देती थी। तो मेरे जब पता चला कि चोट लगी है तो पिताजी ने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेरे चेक किए तो पता चला कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ एड्रेस रुड़की का, जो मैं दादा दादी के पास रहा हूँ, वो यूपी में थी उस समय 99 में। तो पिताजी ने उनको लिख दिया। यूपी का जब तक जवाब आया तो 2000 हो गया, 2000 में उत्तराखंड बन गया। तो यूपी ने बोल दिया कि नहीं, हम तो अभी उत्तराखंड बना चुके हैं, रुड़की वहाँ चला गया है। तो उत्तराखंड को लिखा पिताजी ने, तो उत्तराखंड ने बोल दिया कि अभी तो हम नए नए हैं, हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। तो मैंने पिताजी को बोला, यार क्यों बेइज्जती करा रहे हो अपनी? खाने के लिए रोटी है, तनख्वाह आ रही है, सफिशेंट है, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है किसी के आगे। जो मेरे हिस्से में मिला लिखा हो वो अपने आप आएगा, हमने किसी को नहीं लिखा। उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट से मेरे को एन्युटी आया करती थी। मेरे को वॉर में मेंशन डिस्पैचेस मिला है, एक ये अवार्ड होता है, उसकी कायदे के हिसाब से उसके एवज में हमारे को ज़मीन मिलनी चाहिए। जो ज़मीन कोई देता नहीं है तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आने लग जाता है। साल भर में 25-26 हज़ार रुपये आया करते हैं। अब मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, मेरे को उत्तराखंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से चिट्ठी आती है कि आप एफिडेविट दीजिए कि आप रुड़की में रह रहे हैं, तो ये आपको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं कमाल के बंदे, और मैं देशवासी हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, और वाई विल आई गिव यू फॉल्स एफिडेविट? तो मैंने नहीं दिया, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। मेरा पुश्तैनी गाँव जगह पड़ता है अम्बाला के पास, जो हरियाणा में है। डोमिसाइल वहाँ का होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो ना तो मैं हरियाणा का हूँ, ना मैं उत्तराखंड का हूँ, ना मैं यूपी का हूँ, ना मैं दिल्ली का हूँ। तो मैं कोई स्टेट आज की डेट में मुझे ओन अप नहीं करता, और ना मैंने कभी परवाह करी है। वो 25-26 हज़ार आ रहे हैं, नहीं आए ना से। पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी, 7 साल तक कोर्ट में गए, तो पता चला कि इतना दुख दर्द है, इसके हिसाब किताब। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो आपकी तरफ चैलेंजेस आ रहे होते हैं ना, वो आपको अपनी लाइफ के पर्पस को दिखाते हैं कि इस इलाके में कुछ कीजिए। आप अपने बारे में अपने आप हो जाएगा। जब आप इस इलाके में ठीक करने लगोगे तो आपका काम भी अपने आप हो जाओगे। तो इतना फ़ायदा हुआ उसका मुझे, लड़ाई लड़ने का, पेंशन का, कि उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनोहर पर्रिकर, उनके साथ मिल के हमने काफ़ी काम किया। डिसेबिलिटी के जो पेंस हैं विडोज़ के लिए, जो फार फ्लंग इलाके में रहती हैं, जो सोल्जर्स हैं डिसेबल, पेंशन करेक्ट नहीं मिलती, एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने बोला कि आप पूरे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो जो कोर्ट केस बन सकता है उसको रिजॉल्व करके उसका रेजोल्यूशन दीजिए, वी विल इम्प्लीमेंट दैट एंड वी कुड डू दैट। वो एक कमेटी की रिपोर्ट। तो आप ये देखिए कि एक इंसान, मैं अपने बारे में बड़ाई नहीं करना पसंद करता, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पिताजी ने अपनी ज़िंदगी में ग्रेफ का एक क्लर्क होते हुए नौकरी खोई थी, और ही कुड नॉट फाइट द केस इन कोर्ट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे, और मैं कभी उनकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन वो इंसान जो कभी अपने पिताजी की मदद नहीं कर पाया, उसने पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केसेस को रिजॉल्व करने वाली लेवल तक आके परमात्मा ने उसको खड़ा कर दिया। वो कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद मैंने माँ को ये बोला था कि देखो, आज मैं वो तो नहीं कर पाया था, लेकिन आज पता नहीं कितने माँ बाप का सहारा बन चुके हैं। तो ये क्यों हो पाया?
ठीक है, परमात्मा ने मुझे थ्रू करवाना तो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करता रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए। देश के लिए अगर आप करना चाहते हो कुछ, सिपाही के लिए आप करना चाहते हो, तो आप ये देखो कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। आपके लिए अपने आप सब कुछ हो जाएगा। फिर रोना छोड़ो, आगे बढ़ना शुरू करो। हाउ डू वी ब्रिंग दिस देशभक्ति, द फैक्ट दैट मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज हमारी सबकी आइडेंटिटीज होती हैं, फैमिली की होती हैं, इसकी होती हैं, उसकी होती हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि भारत फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, बट जो हमारी एक्शंस होती हैं वो इज relatively selfish या closer to the loved ones which take priority over that. तो वो, और you know what you say higher vibration, वो क्या कर सकते हैं सोसाइटी में? जो भी आप कर रहे हैं, मतलब कोई अभी सुन रहा है, अपने घर में बैठा है, वो ये सोचे मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, नॉट नेसेसरी सडनली इन अ बिग वे, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उससे भलाई आ रही है, आपके कर्म से भलाई आ रही है, वेदर इट्स अ बिजनेस, वेदर इट्स योर वर्क, whether it's your words, whether it's your thoughts, आप जो भी कर रहे हैं उससे देश में भलाई आ रही है, उससे आपके घर में भलाई आ रही है, उसके मतलब आप कुछ देने के डायरेक्शन में कर रहे हो। लाइक व्हाट ही सेड, देश फर्स्ट, फिर टीम, आर्मी सेकंड, फिर फैमिली, फिर अपने आप को लास्ट रखते हैं। जैसे ही अपने आप को लास्ट रखते हैं सब कुछ हो जाता है। अभी हम क्या करते हैं, मुझे क्या मिलने वाला है इसमें से मेरा फ़ायदा क्या होने वाला है। सो इवन व्हेन वी गो टू वर्क वी शुड नॉट से इसमें मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या देने का चांस मिल रहा है। इससे दो चीज़ें हो जाती हैं, हमारी माइंडसेट शिफ्ट्स टू बिकमिंग अ गिवर। हमें सिर्फ अपनी माइंडसेट को गिवर मोड पे लेकर जाना है। जैसे अपनी माइंडसेट को गिवर मोड पे लेके जाएंगे, वो आपसे तो गिव करते करते बाहर निकलते निकलते पूरे देश में हो जाएगा गिव, लेकिन एनर्जी हैज़ टू बी टू अ गिवर। बट अगर हमारी एनर्जी इधर से मुझे क्या मिलेगा, इनसे मुझे क्या मिलेगा, इस ऑफिस से मुझे क्या मिलेगा, इस टीम मेंबर से, तो वो माइंडसेट ऐसे वाला है, तो फिर इधर तक तो मूव ही नहीं हुए। और जैसे इधर होंगे हमारा अपना अपने आप हो जाता है। सो टू बिकमिंग अ गिवर। और हर एक्शन में वो जो विचार जो है, हाँ, हर एक हैज टू बी ऑफ, या टू बी ऑफ द बेनिफिट ऑफ ऑल, दैट इज द ओनली इंटेंशन, कि सबका फायदा हो। जब आप सबका फायदा सोचेंगे, देश का अपने आप फायदा हो रहा है, लेकिन मेरा फायदा हो, जो वो मेरा फायदा वाली थॉट है ना, उसमें ना उधर होता है और ना कई बार शायद अपना भी नहीं होता उसमें। आई थिंक दिस इज डीपी इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। एंड आई थिंक आपके जर्नी पे एक ग्राफिक बुक भी लिखी है आपने, आप अगर उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। VR फिरोज, हिज ओन सन इज ऑटिस्टिक। ये सैप लैब के MD थे। मतलब ये ही रेड माई वन ऑफ द आर्टिकल्स इन वन ऑफ द बुक, जब वो एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने ढूंढ ढांड के मेरा वेयर अबाउट दिखाया। ही इज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी कि मेरी टीम के साथ आके बात कीजिए। तो वहाँ से मेरे वो लेक्चर की सीरीज शुरू हो गई थी। अब जो मैं नौकरी वोकरी छोड़ के सिर्फ इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग लेक्चर ही देता हूँ। लेक्चर मतलब ज्ञान बांटने की कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत। तो इन्होंने बोला यार, मैंने बोला यार अभी तक क्या ऐसा कुछ किया जो मैं किताब लिखूँ? कहता अभी तक भी जितना कुछ हुआ ना मेरे साथ बहुत हुआ है, प्लीज़ लिखिए। तो मैंने बोला एक शर्त है, लिखेंगे वैसे जिसमें कोई बैरियर ना हो। तो बोले वो कैसे? मैंने कहा वो ग्राफिक नॉवल के तौर पे लिखेंगे ऐसे। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। आपको अंग्रेजी आती है, नहीं आती, छोटे बच्चे हो, 80 साल के बुजुर्ग हो, और ये ग्राफिक नॉवल को एक्चुअल में इसी तरीके से बहुत लोगों ने सराहा। एक दो बच्चे तो ऐसे थे, केरल का एक बच्चा था जो एम्पुटी था बेचारा, कहता आपके ये पढ़ने के बाद मुझे इंग्लिश सीखने की लालसा हो गई। एंड ही रोट अ लेटर टू मी इन इंग्लिश, छोटी छोटी बड़ी प्यारी, उसने थैंक यू लेटर करके लिखे। तो ये इसमें मेरी मतलब बचपन में जो पहला यू टर्न था और उसके बाद दूसरा यू टर्न हुआ और जो ये चैलेंजिंग वन वगैरह बनाया, इस तक की स्टोरी है ग्राफिक नॉवल के तौर पे। पढ़ के बच्चों को थोड़ा सा, बच्चे बूढ़े सबको एक तरीके की होप जनरेट हो जाती है। तो मैं बोला अच्छी बात है, इससे बढ़िया और क्या। अगर आप होप और प्यार बांट सकते हो तो उससे बढ़िया क्या मिलेगा। और आई थिंक दिस इज वन एग्जांपल। कुछ भी आप कर रहे हो उसमें इंटेंशन है कि उनका फ़ायदा हो। अब हम बुक लिख रहे हैं तो हम सोचेंगे हाँ ये बुक से मेरे पास ये आएगा, लोग मुझे पहचानेंगे, पैसा भी आएगा, नाम भी आएगा। दिस इज़ द एनर्जी। काम वही है,
द वर्क डजंट चेंज. जो आप डूइंग कर रहे हैं वो नहीं चेंज हो रहा, लेकिन डूइंग के अंदर की एनर्जी ये होगी इससे क्या बेनिफिट. द इंटेंशन इज ऑफ बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड. अपने बारे में बेनिफिट नहीं सोचेंगे तो सबका बेनिफिट हो जाएगा. आई थिंक ये तो हम बातें करते ही जा सकते हैं. आपकी इतनी पॉजिटिविटी और इतने अच्छे विचार हैं. बट यू नो अभी हम हमारे ये पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में जाते हैं जहाँ व्हाट वी कॉल इट लाइक अ माइंडफुल मिनट. तो हम आपको एक छोटी क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आप थोड़ा आंसर दीजिए जिससे ऑडियंस भी इंस्पायर हो और हमको आपके बारे में भी थोड़ा ज़्यादा पता चल सके. तो आप, हमने सुना है कि आप गाने और पोएम्स के भी काफ़ी शौकीन है. तो एक गाना या पोएम जो आप सुना सकें हमें, वो प्लीज़ बोलिए. हाँ, म्यूज़िक ने मुझे हमेशा सहारा दिया है बचपन से. मेरा जो आइसोलेशन, सॉलिट्यूड मैं कहना पसंद करूँगा. आप उतने अंग्रेजी उस समय नहीं आती थी इतनी तो सॉलिट्यूड जो है वो म्यूज़िक मेरे को बड़ा हेल्प रहता था. और एक जो उस समय की जो पिक्चरें होती थी ना, राज कपूर की खासकर, वो बड़ी एक मैसेज वाली इंस्पायरिंग पिक्चरें होती थी. तो उन्हीं का एक गाना है जो मैं और मेरा बेटा कई बार इकट्ठे भी सुनते हैं. आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी वो जस्ट 23 ईयर ओल्ड, लेकिन वो भी पुराने गानों को पसंद करता है क्योंकि आदत पड़ेगी मेरे से. तो वो गाना है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. तो दिस इज समथिंग विच इंस्पायर्ड मी थ्रू आउट. और आई थिंक यही मतलब आर्म फोर्सेस करती हैं और यही मेरी हिस्ट्री ने मुझे सिखाया, सिखिज्म ने. तो ये कॉम्बिनेशन इसमें बड़ा ब्यूटीफुल निकलता है और अच्छा लगता है कि कुछ कर रहे हो, किसी के चेहरे पे स्माइल आ गई. नहीं, आप तो पूरी दुनिया सबको इंस्पायर करते हो. गाने के सिवा आपका कोई इंस्पिरेशन है? एनीवन हु इंस्पायर्स यू? मुझे लगता है कि ना ये एक बड़ी कंफ्यूज सी स्टेटमेंट हमेशा हम मारते हैं कि आप किससे इंस्पायर होते हो और आपका इंस्पिरेशन कौन है. मैं कभी कभार लिखता हूँ, हालांकि मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर 2 लाइनें लिखी थी जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इंस्पिरेशन सिर्फ आपके अंदर है. अगर है तो आप कहीं से भी पकड़ लोगे, और नहीं है तो आपके सामने कोई भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो वो मैं कहता हूँ कि मतलब आग लगती है वहाँ जहाँ चिंगारी होती है. आग लगती है वहाँ जहाँ चिंगारी होती है, वरना फूंक मारोगे राख पे तो सिर्फ धूल उड़ेगी. अगर किसी राख के टुकड़े में भी कहीं अगर चिंगारी बची हुई है ना, वो इंस्पायर, चाहे राख हो गया वो बंदा, वो चिंगारी उसको ऐसा करेगी, कोई भी फूंक कहीं से भी आ जाए वो पकड़ लेगा उसको खट से और कुछ भी कर देगा ज़िंदगी में. लेकिन अगर बिल्कुल ही राख हो रखा है तो फूंक मारने से क्या होगा, सिर्फ मिट्टी उड़ेगी. इट्स लाइक दैट. वंडरफुल, ब्यूटीफुल. आपके हर रन से पहले आपके माइंड में क्या एक थॉट जो आप डालते हैं? एक्चुअली थॉटलेस होके रहना ज़्यादा बेटर है. इतना सिर्फ इस समय आप खड़े हो, आपने करना है, शुरू करो और करते रहो. मतलब इट्स लाइक छड्डी ना, बस छड्डना नहीं है. सोल्जर का काम है ना, एक बार शुरू हो गया तो जब तक ख़त्म नहीं होता वो कंप्लीट कैसे होता है. कंप्लीट ऐसे नहीं होता कि अरे वहाँ पहुँचना है. कंप्लीट ऐसे अगला मोड़, अगला मोड़, अगला मोड़, अगला मोड़, थोड़ा 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 करते 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 ना, रुकने का भी बीच में कभी दर्द मन करता है. तो उस समय क्या करता था, मैं किसी दूसरे को बोलता चल 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 चल, रुकना नहीं. तो क्या होता है कि अगर आप जो चीज़ आपके पास नहीं है ना, या जो चीज़ आप चाहते हो कि मुझे मिले, वो आप देना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आपको भी मिल जाती है. तो वो धीरे 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 सारी चीज़ें करवा दिया करती थी. थॉटलेस उन्होंने कहा, यू नो, यू हैव टू बी थॉटलेस. व्हाट थॉटलेस मीन्स साइलेंट माइंड. ना fear, ना apprehension, ना desire, just in the present moment, कि I'm here for my right karma. So mind becomes very silent and as a giver. तो वो silent mind आपकी capacity को आपकी normal capacity से ज़्यादा बढ़ा देगा, because यहाँ से कुछ नहीं चल रहा है. तो इसको अगर हम अपने सारा दिन के जीवन में भी लें, even at workplace, competition, comparison,
जजमेंट थिंकिंग, वरी ऑफ द फ्यूचर, फियर, ये सब यहाँ शोर मचाता है. सो दैट बिकम्स एन ओवर थिंकिंग माइंड. तो हम काम तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम साइलेंट माइंड से वही काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा काम करेंगे. तो मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द टूल्स फॉर अ साइलेंट माइंड, ताकि आप सुबह भी करें, फिर बीच बीच में रुक कर करें. अनदर वे ऑफ साइलेंट माइंड है, जैसे हम अफर्मेशन कह रहे हैं, तो आप सारा दिन की हर सिचुएशन में अपनी वोकैबुलरी को अफर्मेटिव कर दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेटिव. तो एक पावरफुल लाइन आपने क्रिएट कर ली, बाकी आपकी दूसरी लाइंस अपने आप स्टॉप हो जाती है, आपका साइलेंट माइंड हो जाता है. दैट साइलेंट माइंड क्रिएट्स पावर. बहुत बढ़िया. योर प्राउडेस्ट मोमेंट विच इज नॉट मेडल्स एंड ऑल ऑफ दैट. एक्चुअली स्पीकिंग, मैंने कभी मेडल और किसी रिकॉर्ड या किसी अचीवमेंट के लिए नहीं कभी भी काम किया. मुझे हमेशा ये, जैसे दीदी भी बता रहे थे, कि अपने आप को अच्छा लगने के लिए खुद का क्रिटिक और खुद का एक तरीके से मतलब कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है. खुद की कॉम्पिटिशन खुद ही से ही है ना. तो जब मैं पहली बार भागा था, उससे पहले जितने वो दुख दर्द और पेन शेन और ये फलाना ढिमका उल्टा सीधा जितनी चोटों ने मेरे को मजबूर किया था, उसमें मेरी वो क्वालिटी कहीं ख़राब हो रही थी ज़िंदगी की, जिसको मेंटेन करके रखना जरूरी था, क्योंकि प्रॉमिस था. तो पहली बार जब मैं भागा था ना, 3 घंटे 40 मिनट लगे थे मुझे. 3 घंटे 49 मिनट, 49 मिनट्स. और मैं बताऊं, 3 घंटे 49 मिनट कांस्टेंट बैटल थी मेरी खुद के साथ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी उतनी जितनी मैं सोच रहा था कि मैं करूँगा. मुझे नहीं मालूम था कि इतना लंबा भागने में मेरे को क्या चोटें लगेंगी, क्या परिस्थिति होगी, कितनी पेन होगी. और उसके साथ साथ जो एब्रेजन्स हो रहे थे, जो पेन हो रही थी, और जो एक सेल्फ टेकन पंगा वाली चीज़ मैंने ली थी, वो मेरे को रोकने की कोशिश कर रही थी कि रुक जा, शॉर्टकट ले ले, कट मार जा, या फिर लिफ्ट ले ले, किसी को हाथ दे, टांग कटी हुई है, चोट लग रही है, बैठ, कोई भी बिठा लेगा तेरे को यार, जाओ और फिनिश लाइन से थोड़ा देर पहले उतरो, फिनिश लाइन को क्रॉस करो, फोटो खींचो और बताओ कि मैंने कर दिया, है ना. बट देन एट द सेम टाइम वो जो दूसरा मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो मेरा दोस्त अच्छा है, वो मेरे को बोलता था, प्रिक कर रहा था कि डीपी ये तो तू कर देगा, मगर इज दैट व्हाट अ सोल्जर इज. मतलब विल यू बी एबल टू कीप द ट्राई कलर हाई लाइक दैट. तिरंगे की शान बनी रहेगी. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, घर में जो बेटा बैठा हुआ है, उससे नजरें मिला के बोल पाएगा ये बात? तो वो जो कॉन्कर किया था ना अपने आप को, मन को जो जीता था उस दिन, वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है हमेशा, लेकिन वो सबसे इतना चलो रे, सबको साथ में लेके चलते हैं. थैंक यू. वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. थैंक यू. Thank you. You too can start or enhance your mindfulness journey using the Think Right app on iOS and Android store. It's got a huge number of daily affirmations, daily journeys, daily meditations that will enable us to hold your hand as you move in this transformative journey of life.